Hello everyone, how are you all? Welcome back to the class, guys. I hope you all are doing really great and enjoying this series on world geography which we have started. Those students who are new to this video, directly coming to this video, already in this particular series of world geography, we have completed North America and South America. In the last class, we had started the whole new continent, that is Africa. And Africa part 1 we have covered, and not only covered, guys, we have ratified all the countries which are present in Africa, right? That is, we were understanding the political feature, that which country is touching which country, what are landlocked countries. We have seen that which of the countries are touching Atlantic, which of the countries are touching Red Sea, which of the countries are touching Indian Ocean. Like this, we have tried to see the map, right? Africa continent especially. We will revise it. Let us see how much you remember before moving ahead. There are certain other aspects which we have to talk about in this part, like the places in news, like the islands of Africa, like other important features I'll be telling you. Okay, so let's see how much you like remember. I know if at least one person is remembering everything about what we have studied in all these lectures, especially in the last lecture of Africa, all the countries, which I also told you that it is a challenging part. If you have unlocked that challenge, guys, then definitely this world geography is going to be a cakewalk now, because everything else is easy, right? Let us revise. Let us see in this particular map, let us see. So we have completed North America, South America. We started with South America. I am only talking about the political features. Why political features are important? Because in the previous year question, they are asking that what countries border are touching which countries. They are asking which of the countries are touching that particular sea, that particular ocean. So that's why I'm focusing upon this thing, right? You also must be understanding, guys. South America, only countries I am talking about. Can you tell me the South America countries? And South America countries, you will remember that we have understood it in the trios form. Those who are new to this video will not be able to understand, guys. I would request them to go back to see at least the Africa part, or the whole series you try to see. You will enjoy it definitely. So trios means we have 4 trios over here. One trio is this one. This is your French Guiana, Suriname, Guyana. Then you have Venezuela. Second trio is starting. Means 3 countries group we have made. Venezuela, this particular Colombia, because I have told you this Panama is connected, this North America continent is connected with the this particular Colombia country. Then over here you have seen Ecuador. Then the third trio you will see Peru, you will see Bolivia, and you will see Chile in this form, guys. This is the third trio. Fourth trio was, I have told you, this particular, now exactly I am not showing you, but you just understand that is Paraguay. Then Paraguay is not touching this Uruguay, right? And this Argentina. In the South America we have studied all these feature, which country is touching what and what not. And the last country, Brazil, we have seen, guys. So this was South America's political feature which we have seen. A lot of other physical features like mountains, rivers, we have tried not only to understand but ratified also. Over here, can you remember? Pause the video. I'm doing it for you only, guys. Otherwise I would have just like come to this particular Africa continent. Over here I have told you that this particular region of Central America you should know. Then over here you know that there was Belize, Guatemala, Honduras. You remember this Guatemala, you remember this El Salvador, Honduras, Nicaragua, then Costa Rica, then this Panama, and this is the isthmus. I told you what is the difference between isthmus and strait in the last classes also. That's why I'm saying my every class is connected. Try to see it. Try to mark everything which we have learned. I'm just talking about the political features till now. In this particular part, you have seen this particular part as Mexico. This 49th parallel, do you remember, guys? This particular part is your USA, and this is also the part of USA. This is the part of your Canada, and this is the part of your Greenland, which is the part of North American territories, but it is politically controlled by Denmark, which is over here when we will see Europe. Other than that, I have also told you that, okay, if you want to remember, you remember that this is your 55 degree something, and this is your equator, right? Over here is your equator, and I have told you that just above equator, if latitudes you want to talk about, 12 degree you will find over here, 55 degree you will find over here. For America you will find over here, for this North America, 7 degree to over here 83 degree, something around. Similarly, in the last class we have started Africa, and I have told you that this particular thing is your 37 degree, and this is your 35 degree. This is north, this is south,
south, sorry, this is north because it is above equator. This is northern hemisphere, this is southern hemisphere. I hope this all I am revising, and only those who will be following this series will able to understand. Those who have seen the last class will also be able to understand. Likewise, over here you will see prime meridian is passing through over here. In this particular class, now it will be very easy for you to locate the countries which are passing over here through these particular equator, Capricorn, Cancer, right? We will be seeing it, guys. Don't worry about it. But first, let us see what all countries we have remembered. In what way, right? Let me find you the political map of Africa. This is your political map of Africa. In the last class, now I hope you are not in that position that आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी कंट्री कहाँ पर. If I am saying Ethiopia, now you have the exact idea. And if कुछ लोगों को भी अगर आइडिया है ना, तो दैट मीन्स कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी फेयर्स बिकॉज दे हैव सीन दिस वीडियो एंड नाउ दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर टिप्स गाइस. सो आप सभी को अपना लेवल बढ़ाना होगा. अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये बहुत ही ईजी वे में आई एम ट्राइंग टू डू इट गाइस. अपना टाइम लगा रहा हूँ ना. आई एम ऑल्सो लाइक गिविंग यू ऐसे शॉर्टकट में आपको कुछ भी नहीं बता रहा. दिस इज वंस फॉर ऑल आई एम टीचिंग यू, राइट. सो ओवर हियर इफ आई आस्क यू अबाउट सम कंट्रीज, कैन यू टेल मी रैंडमली. फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ वी हैव स्टडीड. ठीक है, उसके बाद आई आस्क यू रैंडमली. सो दीज 5 countries फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू डू इन द लास्ट क्लास, राइट. कैन यू टेल मी दीज कंट्रीज ओवर हियर. This is your Morocco. This is your Algeria, largest country in this Africa, largest area-wise country in the Africa continent. Tunis, over here Libya, over here Egypt, and this Sinai Peninsula is under Egypt, guys. Right? I have told you this. Now, in this particular class, in today's class, we are going to open all this up. ठीक है, कौन-कौन सी जगह कहाँ पर important we are going to see. Now it will be very easy for you to locate all the countries which are present in equator, which are passing through Capricorn, passing through Cancer. I hope you are understanding. This part we have tried to done. Then this 6 countries, 5 and 6 countries we have tried to do. Western Sahara. This is Mauritania, Mali, Niger, Chad and Sudan. I have told you out of this that some are landlocked countries. Then we tried to do this Horn of Africa. This is Eritrea, Djibouti, a small country, don't forget it, Somalia and Ethiopia. Then we can try to do these 3 countries over here touching the Indian Ocean. This is also touching the Indian Ocean, but this is your Red Sea. This is your Mediterranean Sea. I have told you that from Asia, it is divided. It is Africa is separated by this Red Sea, this Bab el-Mandeb Strait, and this Gulf of Aden. Over here by Europe, Mediterranean Sea, and this Strait of Gibraltar is separating. This we have seen in the last class, guys. I hope you are understanding. This is Atlantic. This is Indian Ocean. So over here you will find Kenya, Tanzania, and Mozambique. Then I have told you about these 3 countries. South Africa, this is your Namibia, this is your Angola, and over here I have told you that 2 countries are also there which are landlocked. These are also known as enclaves, and these are basically Lesotho and Swaziland, which is also known as Eswatini. I'm just revising. This is just a revision going on, recap, guys. Then I have told you that remember these 4 countries in the form of DRC, Congo, and this is your Angola, and this is your Mauritania. Not Angola, sorry. This is your Gambia, and this is your, sorry, this is your Gabon, guys. This is your Gabon. Alright, and this is your Equatorial Guinea. So ये 4 countries हमने साथ में देखने की कोशिश करी थी. I have told you that all these countries are touching this Atlantic Ocean, guys. आपको लगेगा डीआरसी टच नहीं कर रहा, लेकिन करेगा. आपको मैंने कैपिटल भी पढ़ाई थी, किनशासा एंड ब्राजीविला. यहाँ पर 2 कैपिटल्स, किनशासा इज फॉर डीआरसी, ब्राजीविला इज फॉर कोंगो. आई होप यू रिमेंबर. दिस इज योर कैमरून एंड दिस इज योर नाइजीरिया. Then I have taught you about this particular area, guys. These countries, group of small countries. अब लगभग कुछ, I am sure about this, some students are लर्निंग इट एज इट इज. सब कुछ याद हो रहा होगा कुछ स्टूडेंट को एटलीस्ट आइडिया तो हो रहा होगा दैट अगर आई एम टॉकिंग अबाउट आइवरी कोस्ट, इट इज नॉट इन द वेस्टर्न अफ्रीका और इट इज नॉट इन द ईस्टर्न अफ्रीका, सॉरी, इट इज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न अफ्रीका, नॉट नॉर्दर्न, नॉट सदर्न अफ्रीका. लाइक दिस ऑल्सो इफ यू आर हैविंग आइडिया, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. बट आई से जहाँ पर मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ दैट ये आपको शॉर्ट याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए गाइस, राइट. सो ये वाला एरिया भी कंप्लीट हुआ था. Over here I talked you about these 2 countries which are also landlocked. Over here you have seen the Central African Republic. Over here you have seen about this particular place as South Sudan because it is
सूडान के नियर, आपने सूडान के सदर्न रीजन में देखोगे सूडान एंड साउथ सूडान, लेटर ऑन मतलब ये बाद में सेपरेट हुए थे. दीज थ्री कंट्रीज एज जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड बोट्सवाना. एंड यहाँ पर आप इसे मत भूलना, मालावी को, ये मालावी कंट्री को मत भूलना गाइस. देन ओवर हेयर ब्रू कंट्री को भी मत भूलना, ये युगांडा, ये रवांडा, ये ब्रूंडी, ब्रू इन द सेम मैनर. जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, यू हैव टू सी द लास्ट वीडियो बिकॉज ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. दिस इज अ रिविजन इज गोइंग ऑन. एंड किगाली वॉज द कैपिटल ऑफ रवांडा. बहुत सारी कैपिटल्स भी हमने देखी थी. But this area also is important. You don't try to forget it. I have told you that first complete this area of Burkina Faso is the cap of these four countries. यहाँ पर कैप क्या देखी थी आपने, आइवरी कोस्ट और ये जीटीबी. जीटीबी नगर, जीटीबी नगर इज द प्लेस इन Delhi guys, very famous for these aspirants and for competitive examination. G means Ghana, T means Togo, B means Benin. Ivory Coast. Then this particular area over here, rest of the countries और Burkina Faso, you can say that ये एक उनके लिए क्राउन की तरह है, राइट. ओवर हेयर यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर एरिया एज सेनेगल, दिस इज गामीबिया, दिस इज व्हाट, गिनी बिसाओ, एंड दिस इज गिनी बिसाओ एंड गिनी. ओवर हेयर यू विल फाइंड दिस सियरा लियोनी एंड लाइबेरिया, सियरा लियोनी. दिस पर्टिकुलर एरिया इज योर Guinea, and then Guinea Bissau, Gamibia and Senegal guys. So this is one of group, and because of this you will find that this particular area, it is like a gulf and it is known as a Gulf of Guinea. Now we are going to see this. See, in the last class we have seen all these features. Now we are going to understand that what all are the countries which are passing through equator, Capricorn and Cancer. एक बार पढ़ोगे उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. एंड द प्राइम मेरिडियन ऑल्सो, कौन कौन सी कंट्रीज पर. एक बार ये पूरा हुआ उसके बाद वी विल बी सीइंग द आइलैंड्स ऑफ दिस कंट्री. और फर्स्ट सी द आइलैंड्स, राइट. नाउ लेट अस सी द आइलैंड्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट गाइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू सी इट. See this map over here guys. Now islands are we are studying, and islands, first island you have to remember that this is a Canary Island, and you must have listened or heard about this island also, Canary Island. And this Canary Island are not the part of, not controlled by this African countries guys. It is basically controlled by one of the European countries, that is Spain. So Spain is having the influence or political control over these Canary Island guys, Canary. But you should know that where Canary Islands are located. Canary Islands are located in the west of this Morocco. You can see this Morocco country over here, which we have studied also, first country of Africa which we have studied. Canary Island is present over here guys. Second island which you have to focus is Cape Verde. Cape Verde, you should remember that this is a particular island which is present in Senegal, near Senegal, Mauritania, and over here you will find this position of Cape Verde. It is not present in, how you have to remember it, it is not present in the Caribbean island, because in Caribbean island we have studied a lot of islands in North America guys, right. In that it is not present in the Pacific Ocean, Micronesia, it is not present, it is not the part of Micronesia. This is how you have to remember Cape Verde. These two countries, these two particular islands you have to know. Third island which is, this is Cape Verde, this is Canary Island, and third one is over here Sao Tome and Principe. This you can see Sao Tome and Principe. Over here you will find some island. Let me show you in another map also. Can you see this in this particular map, Sao Tome and Principe? Just focus on where I am focusing guys. ये आपको बहुत chaotic लगेगा, but all of this particular thing आपको कुछ पता है, कुछ अभी पता लगेगा. आपको यहाँ पर केप वर्डे दिख रहा है, ये आइलैंड जो कि सेनेगल के बगल में और मॉरिशियाना के बगल में है, ठीक है. अब मैं जैसे मॉरिशियाना बोल रहा हूँ, सेनेगल बोल रहा हूँ, अब ये आपके लिए इजी होगा बिकॉज नाउ यू हैव नोन द पॉलिटिकल फीचर्स, राइट गाइज. नाउ ओवर एयर यू ट्राई टू सी दिस कैनरी आइलैंड विच इज अंडर स्पेन. इट इज रिटन ऑल्सो स्पेन के अंडर है. ट्राई टू फोकस अपॉन दिस थिंग. नेक्स्ट आइलैंड विच यू हैव टू नो अबाउट दिस इंडियन ओशंस, ये आपके अटलांटिक ओशंस में प्रेजेंट है. These are not present in Indian Ocean, Pacific Ocean, Micronesia. These are not present over here guys. Try to understand. Okay, now we are understanding these are the three islands from Atlantic side. Now in the Eastern Africa side you will find some important islands over here. I'll be telling you about them guys. Wait, see over here guys. Now over here you have seen this, first of all, one of the largest island, that is Madagascar. ये मेडागास्कर आप देख रहे हो, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट. मेडागास्कर इट इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ मोजाम्बिक. सो मोजाम्बिक के बगल में ही आपको मेडागास्कर मिलेगा, ठीक है. एंड ओवर हेयर वन मोर आइलैंड, दिस इज वन आइलैंड
One more island group is Seychelles. Seychelles, somewhere it is pronunciated the way you want, but Seychelles or Seychelles, right? Over here you will find. Right now don't focus upon the capitals. If you want to see the capitals you can see, but I would say that first try to know the location. These are Seychelles island, फैले हुए हैं ऐसे ऐसे आपको करके कुछ मिलेंगे ऐसे, ठीक है, आर्किपेलाजो के फॉर्म में. ऑल्सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर दैट वन मोर आइलैंड, कोमोरोस, शेशलीज, मेडागास्कर एंड मॉरिशियस तो बहुत फेमस है. मॉरिशियस ओवर हेयर यू विल फाइंड गाइस, मॉरिशियस. एंड वन मोर आइलैंड ओवर हेयर दैट इज रीयूनियन. सो यहां पर आपने 4 आइलैंड का ग्रुप देखा, शेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशियस एंड रीयूनियन. फ्रांस के अंडर है, अलग अलग आइलैंड्स हैं गाइस ये. ओवर हेयर केप वर्डे, कैनरी. ओवर हेयर साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी. लेट मी शो यू इन अनदर मैप गाइस. सी इन दिस पर्टिकुलर मैप शेशलीज, दीज स्मॉल स्मॉल आइलैंड कौन सी कंट्रीज के हैं? शेशलीज आइलैंड ग्रुप. दिस इज कोमोरोस जो मेडागास्कर के बगल में ही है. फिर मेडागास्कर आप पूरा देखोगे, उसे मोजाम्बिक चैनल भी बोलते हैं इनके बीच में जो वो, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल ओवर, क्योंकि मोजाम्बिक यहाँ पर है. एंड दिस इज मेडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल. एंड योर Mauritius countries guys over here. Then this is Mauritius. Over here you will find one more island, that is Reunion Island. Mauritius, Reunion, and Reunion is basically controlled by France. समझ रहे हो? तो फ्रांस की 2 टेरिटरीज आपने देखी बेसिकली. दीज आर इंडिपेंडेंट कंट्री. शेशलीज इंडिपेंडेंट है, मॉरिशियस इंडिपेंडेंट है. रियूनियन को कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रांस को. कैनरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पेन. यहां पर आपने देखा था साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी, केप वर्डे ओवर हेयर. So try to locate them in the blank map now guys. Over here can you tell me about these islands? These islands are basically Canary Islands guys. And जब आप देखोगे इसको Canary Island तो आप इसको याद रखो that इस पे स्पेन का होल्ड है, ठीक है. These are the Spain territories. Over here स्पेन आपको मिलेगा यूरोप में. जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब आपको स्पेन की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता होगी, ठीक है. स्पेन. ऑल्सो यू विल सी, आपने देखा था सेनेगल, और ये आपका क्या बोलते हैं, मॉरिशियाना के बगल में ही यहाँ पर ही आपको मिलेंगे एक और आइलैंड ग्रुप, दैट इज यू से केप वर्डे. देन ओवर हेयर यू आर फाइंडिंग दी स्मॉल स्मॉल, दैट इज साओ एंड टोमे प्रिंसिपे. दीज आइलैंड ग्रुप यू विल फाइंड ओवर हेयर. Also you will find, now these 3 I have told you to remember from here. Also over here you will find this group over here, that is, it is not represented over here, but I am telling you that this is Seychelles. This is your, this particular group is your Comoros. This particular major island is your Madagascar. And over here you will find 2 more. One is Mauritius, very famous honeymoon destination. And over here you will find over here one more, Reunion Island guys. And Reunion is whose territory? France territory. You try to understand that Mauritius is having one of the largest Indian diaspora guys, right? So from the diaspora angle, paper GS2, you have to see the Mauritius also. One important fact from the examination which is often in news is the Chagos archipelago guys. Chagos archipelago, the dispute over Chagos archipelago. Let me show you. Can you see this particular part? Now you have to understand, let me zoom it guys. This is the Seychelles area, this is Comoros, this is Madagascar, and this is your Reunion and Mauritius. Understood? ठीक है. ये वाला रीजन तो आप देख रहे हो. इंडियन ओशन के थोड़ा सा आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको चैगोज आर्किपेलागो मिलेगा, चैगोज आर्किपेलागो. एंड इन दिस चैगोज आर्किपेलागो देयर इज वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस चैगोज आइलैंड ग्रुप ओनली, दैट इज दियागो गार्सिया. एंड आपने अगर, इफ यू आर वेरी साउंड इन करंट अफेयर्स, अगर आपको पता होगा दैट देयर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन चैगोज आर्किपेलागो एंड दिस Seychelles guys. Basically why? Chagos archipelago is basically controlled by British. It is a British island group guys. Likewise we have seen Reunion is under France, we have seen that Canary is under Spain. So this is being controlled by British, but there is a dispute between British and Seychelles. Why? Because Seychelles is saying that this Chagos archipelago is basically under Seychelles control only. Because if you will understand the dispute in IR, you have to study this guys. Why Diego Garcia is famous? Because over here you will find US military base. And how US came into picture? You will see that US, basically Britishers, leased this territory of Diego Garcia to US for 20-30 years guys. Exactly I am not remembering how much years, 20 or 30 years, but you once check this particular aspect.
Now this has been in recent news, means 2019, 2020 news. I am telling you that this Seychelles went to international court of justice. Over there they put this case that these particular Chagos archipelago should be under their territory. Seychelles is like arguing this, so that's why it was highlighted in this particular year, guys. So you have to understand from the world geography. My area is to let you know that this is Chagos archipelago. This is under Chagos archipelago के अंडर ही आपको दियागो गार्सिया मिलेगा. दियागो गार्सिया इसलिए फेमस है बिकॉज यहाँ पर यूएस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस है. एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडिया एंड इंडियाज इंटरेस्ट, ये आपका आईआर का पार्ट बनता है. Why I am connecting this? So that जब IR में आप पढ़ोगे what are the India's vested interest for this Indian Ocean, because you know peaceful coexistence is what India wants. Indian Ocean शांति से बना रहे, right? This is what India's ambition is. The net security provider, ये इंडिया का ambition है for Indian Ocean. So over there you will understand that this Chagos archipelago, Diego Garcia, this Seychelles issue in more detail, guys. I'm just giving you a hint how you have to focus upon things. So this you have understood, guys. This is Seychelles, this is Chagos, and that's why it is written over here, British Indian Ocean Territory. So when you will study the whole story, now story is not important from world geography point of view, but it is important from international relations, that is GS2 point of view. It is a relation, it is important, right? So let us move ahead. This is Seychelles, this is Comoros, we have Madagascar, we have Mauritius and Reunion. There are a lot of other islands too, but those are not important, right? One more island which I have to tell you is Zanzibar and Pemba. Where are these? See this particular map. Can you spot Zanzibar and Pemba? Over here, see this icon, Zanzibar. Zanzibar and Pemba is over here only, and it is under Tanzania, guys. Now Tanzania आपको difficulty नहीं होनी और ये कहाँ पर locate करना Tanzania को. तो near Tanzania only you will find these two islands, Zanzibar and Pemba. These two islands are under Tanzania only. Like Lakshadweep and Andaman is under India. Likewise Zanzibar and Pemba are under Tanzania, and these two islands are major produce of clove. Clove means long. World 95% of the production of clove is done over here, guys. I hope you are making the sense of Canary Island, Cape Verde, Sao Tome and Principe, over here Seychelles, and the dispute with Chagos, over here Comoros, over here Madagascar, Mauritius and Reunion. 4 over here and 3 over here in Atlantic Ocean. Over here you have seen that Tanzania is having Zanzibar and Pemba also. Do you remember this particular Bahamas? Do you remember this particular Cuba, Haiti, Dominican Republic? Over here we have seen Trinidad and Tobago. Tobago something karke, right? Near Venezuela, guys. Do you remember this? Do you remember this particular Hawaii? And in Hawaii, and this all we have understood in North America, guys. Over here we have seen 2 mountains, Mount Loa and Mount Kilauea. Over here, do you remember this Galapagos? Over here, these are particularly your Canary. These are particular, और यहाँ पर आप एक करंट भी देखोगे. मैं आपको बताऊंगा कौन से करंट्स आपके फ्लो करते हैं. I'll be taking the lecture on ocean currents also. If you want me to take it, I'll take it. Do comment also, guys, right? Over here you will find जहाँ पर आपका सेनेगल एंड उसके बगल में आपको मिलेगा मॉरिशाना के बगल में. यहीं पर आपको कौन से आइलैंड मिलते हैं? केप वर्डे. यहाँ पर साउ टोमे एंड प्रिंसिपे. यहाँ पर आपको सेशेल्स. दिस इज योर चैगोस. दिस इज योर कोमोरोस. दिस इज योर मेडागास्कर. दिस इज योर Mauritius, and nearby you will get under Mauritius you will Reunion, and over here Tanzania, Zanzibar and Pemba. See in the particular map and locate it, guys. Slowly we are covering all the political features of this particular area. Europe and Asia will be the leftover. We will be continuing it when we will be done with Africa, guys. This is only the physical feature we are talking about right now, and we have made the whole of Africa, guys. Now we are ready to understand that which all are the countries passing through equator, Capricorn and Cancer, and passing through prime meridian in African continent, right? Let us see. अब ये देखो कितना easy हो जाएगा आपके लिए, right? सिर्फ अफ्रीका पे फोकस करो, don't focus anywhere else. मछली की आंख समझो, और ये अपना ही पार्ट है यार. ये कोई ये अपना ही पार्ट है पूरा पियोको एंड ऑल, और धीरे धीरे सारा ही अपना पार्ट है. बिलीव इन अखंड भारत, राइट? सो ओवर हेयर डोंट फोकस एनीवेयर एल्स. जहां पर मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं सिर्फ वहां पर फोकस करिए. मछली की आंख समझिए, गाइस, राइट? जस्ट वेट. ओवर हेयर यू जस्ट सी दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट. क्या अब आपको दिक्कत होगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर मैं बोलूं यू हैव टू सी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर?
नाउ मुझे नहीं लगता आप ये वाला कंट्री वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। हम वेस्ट में सबसे पहले कौन आएगा? एवरीवन कैन आइडेंटिफाई वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, देन दिस इज अल्जीरिया, दिस इज लीबिया एंड दिस इज इजिप्ट। एवरीवन कैन आइडेंटिफाई इट नाउ गाइस। अब मेरे को आपको दिखाना भी नहीं पड़ रहा, मेरे को आपको कुछ रटवाना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए। आप ये समझो, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, देयर इज नो माली इंक्लूडेड, there is no Morocco included, two countries are not included over here, then Algeria, Tunisia will be not included, Libya and Egypt। और नीचे वाली कंट्रीज 6 कंट्री जो हमने पढ़ी थी उसमें कुछ भी नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग? ओवर हेयर हमने ये पढ़ा देखा था मैक्सिको, ये तो जा रहा है मैक्सिको के थ्रू। ओवर हेयर यू विल सी दिस। जब बाद में एशिया पढ़ेंगे तो इंडिया के अंदर तो आपको स्टेट्स भी याद करनी है, कौन कौन सी स्टेट से जाता है। 8 स्टेट्स आर देयर, वो हम देखेंगे उसको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, राइट। ओवर हेयर, एंड इफ यू वांट टू टेक मी योर इंडियन ज्योग्राफी आल्सो, टू कमेंटेड गाइस। यहाँ पर आप देखो दैट ये वाला एरिया क्या है? वेस्टर्न सहारा। ये वाला एरिया क्या है? लेट मी चेंज द पेन। ये वाला एरिया कौन सा है? आपका मॉरिशियाना। ये वाला एरिया क्या है? आपका अल्जीरिया, लार्जेस्ट इन साइज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दिस एरिया इज योर लीबिया एंड दिस एरिया इज योर इजिप्ट गाइस। तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो रहा है, नहीं हो रहा? आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर से सिर्फ ये वाली कंट्रीज, अगर आपको लाइन भी याद रखनी है आप रख सकते, समझ गए? सो दिस इज योर पर्टिकुलर Capricorn, sorry, Cancer, Tropic of Cancer over here, Tropic of Cancer. Now you see this particular part where you are seeing Tropic of, Equator, and Equator, you know over here that this is passing from Ecuador in the South America, Ecuador, BCE, I have told you, Ecuador, Colombia, Brazil, but you don't remember those particular mnemonics, guys, right? You remember how they are located over here. 3 countries are touching over here. Over here you will see Equator में ये वाला कौन सा कंट्री है? Now you will be getting it, guys. Let me zoom it. Can you identify this country? इक्वेटोरियल गिनी के बगल में कौन सी कंट्री थी? यू नो इट दैट दिस इज गैबोन, एंड गैबोन के बगल में कोंगो, कोंगो के बगल में डीआरसी, डीआरसी के बगल में ब्रू कंट्रीज, एंड बीआर इज जो छोटी छोटी, युगांडा, देन युगांडा के बगल में केनिया, एंड केनिया के बगल में सोमालिया। नाउ मुझे नहीं लगता मैं आपको बार बार दिखाऊं मैप में, ठीक है? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो वन हेडिंग आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रहेगी, उस कंट्रीज को मार्क करो और लिखो। दूसरी हेडिंग इक्वेटर की रहेगी, इक्वेटर में आपका ये आएगा। इक्वेटर से एक और आइलैंड ग्रुप मैंने जो बताया था आपको, वो पास करता है, एंड दैट आइलैंड ग्रुप इज साओ टोमे एंड प्रिंसिपे गाइस। सो इक्वेटोरियल गिनी इज नॉट पासिंग थ्रू। समझो, ये छोटी सी कंट्री, छोटू सा हमने एक ग्रुप पढ़ा था इक्वेटोरियल गिनी का, वो नहीं पास कर रहा। उसके अलावा जो गैबोन है, कोंगो है, डीआरसी है, ये पास कर रहे हैं। ये इन कंट्रीज को लिखो गाइस एक साथ, और एक बार खुद से रफ मैप में मार्क करने की कोशिश करो। जस्ट वेट। एंड दिस एक बार कैप्रिकॉन को भी देख लो, देन वी विल मार्क इट इन अ ब्लैंक पेज। यहाँ पर आपको कैप्रिकॉन पास हो रहा है, ये वाला एरिया आपको पता है कैप्रिकॉन का है, पूरा कैप्रिकॉन का एरिया जाता है 23.5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सी? साउथ अमेरिका में आपको पता है चिली, दिस इज योर अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। ABC प्रोडक्शन के नाम से भी मैंने बोला था, अगर भूल जाओ तो। वैसे जिनको मैप याद है वो कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बोला था उरुग्वे नहीं पास करेगा, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्योंकि साउथ अमेरिका हमने डन कर दिया। दोज हु हैव नॉट सीन इट, सी इट गाइस, बहुत ही अच्छे से आपको पूरी लोकेशन याद हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है? लेट अस जूम। मुझे पता है आप कर दोगे अब इसको, ठीक है? यहाँ पर आपको पता है दिस इज नामीबिया डेजर्ट से आपको याद रखना है, यहाँ पर डेजर्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक कोल्ड ओशन करंट भी चलते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा नामीबिया, ये बोट्सवाना वाला रीजन है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस जिम्बाब्वे इज नॉट अंडर और इज नॉट पासिंग थ्रू कैप्रिकॉन। जिम्बाब्वे को हटा दो, ये मोजाम्बिक आ जाएगा, और नीचे साउथ अफ्रीका, और ये मेडागास्कर आइलैंड गाइस। नाउ लेट अस मार्क ऑन द ब्लैंक मैप। सी ओवर हियर, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट मेरे को कैप्रिकॉन पता करना है पहले, कैप्रिकॉन कहाँ से पास कर रहा है। यू सॉरी कैंसर, ओवर हियर यू विल सी कैंसर पासिंग थ्रू लाइक दिस, राइट? सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेस्टर्न सहारा। आई हैव टोल्ड यू मोरक्को विल नॉट कम। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मॉरिशियाना। नीचे वाले से तो 2 आ रहे हैं, ऊपर वाले से अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट गाइस। ये आपका कौन सा है? कैंसर। देन इक्वेटर, इक्वेटर आपको पता है यहाँ से पास करेगा इक्वेटर, तो इक्वेटोरियल गिनी नहीं आएगा, ये साओ टोमे आ जाएगा, ये गैबोन आ जाएगा, ये आपका कोंगो, ये आपका डीआरसी भी आ जाएगा, ये आपका युगांडा, ये आपका केनिया एंड सोमालिया भी आएगा। दिस इज योर इक्वेटर, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। एंड आप साउथ में जाओ, आप यहाँ पर दिस विल इंक्लूड योर, आप देखो ये 23.5 साउथ,
ये वाला एरिया मोजाम्बिक पे जाएगा, जाएगा। बोट्सवाना पे जाएगा क्या, जाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे पे जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये वाला एरिया आपने देखा कौन सा है, नामीबिया। ये वाला एरिया कौन सा है, दिस इज योर बोट्सवाना, बट नॉट इन जिम्बाब्वे गाइस। तो जिम्बाब्वे में नहीं जाएगा, मोजाम्बिक में जाएगा। एंड नीचे साउथ अफ्रीका का टॉप पोर्शन कट हो रहा है, साउथ अफ्रीका में जाएगा। और ये मेडागास्कर में जाएगा। एक तरीका क्या था, मैं आपको ये कैसे सिखाता, डायरेक्टली मैप लेता और मैप में मैं सिर्फ मार्क करवा देता, ऐसे गोल गोल कंट्रीज को बना देता और एक निमोनिक्स पढ़ा देता। वो आपको कभी होल्ड नहीं बनाता गाइस। हमें ये समझने के लिए मैंने आपको पूरा पॉलिटिकल फीचर्स बताया है। आई होप यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग दिस फैक्ट कि हम कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। सीखने के अलग अलग तरीके हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लर्न एग्जैक्टली द वे आई वांट यू टू लर्न गाइस, राइट। नाउ एक चीज़ और रहती है, वो है हमारी 0 डिग्री। एंड 0 डिग्री कहाँ से पास होती है, आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। सी दिस 0 डिग्री longitude guys, and this is also known as prime meridian। ये पूरी आप सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में देखो कहाँ से पास हो रहा है। तो ये अल्जीरिया से पास हो रहा है क्या, राइट। अल्जीरिया से कैंसर पास हो रहा था, राइट, ओवर हेयर। देन ये माली आपको याद है, ये माली से पास हो रहा है। जब आपको ये याद होगा कि ये अल्जीरिया से माली से पास हो रहा है, देन ये वाला कौन सा था जो हमने कैप पढ़ा था, क्राउन, बुर्किना फासो। एंड बुर्किना फासो के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे 2 कंट्री उससे पास हो रहा है। हमने पढ़ा था GTB, राइट। तो ये G से भी पास हो रहा है एंड T से भी पास हो रहा है, दैट इज घना एंड टोगो से पास हो रहा है। सो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, राइट इट डाउन गाइज, राइट। ये मैं आपको राइट नहीं करवाऊंगा, आप खुद से भी करो कुछ, ठीक है। ओवर हेयर दिस इज 1 कंट्री इट इज पासिंग थ्रू, 2, this is 3 and 4 5, so 5 countries will be passing through African countries, this prime meridian you can see in this map also। forget about Europe, Europe को यूरोप में याद करेंगे, but see over here। so again now can you mark these countries also, can you see this particular prime meridian now, prime meridian is coming like this, it is coming 0 degree, equator is coming like this guys, this is your Cancer, this is your Capricorn, understanding। now let us see one important countries which has been in news, important areas we will be seeing it guys। अभी हम फिजिकल पे नहीं पहुंचे, you try to understand अभी तक हमारा क्या चल रहा है अंडर दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट। we are focusing upon the political feature। अंडर पॉलिटिकल फीचर वी हैव सीन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कंट्रीज, किसके साथ कौन टच है, कौन सी लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड सॉरी वी हैव सीन कोस्टल कंट्रीज, कौन सी कोस्ट, कौन सी इंडियन ओशन और अटलांटिक और मेडिटेरियन सी से हमने देखा है। वी हैव ऑल्सो सीन द आइलैंड ग्रुप्स, वी हैव ऑल्सो सीन द इम्पॉर्टेंट लाइक इक्वेटर्स एंड ऑल, कौन सी लाइन से पास हो रहा है, कैंसर, कैप्रिकॉन। नाउ द टाइम फॉर दैट द प्लेसेस इन न्यूज ऑल्सो विच सिटीज आर इंपॉर्टेंट इन नेचर, ये हमने पॉलिटिकल फीचर्स के अंदर देखना है। इन दिस पार्ट वी विल बी फोकसिंग अपॉन दीज 2 एरिया मोर, राइट। इसमें हमने फोकस कर दिया, आइलैंड्स देख लिया, कंट्रीज देख लिया, अभी प्लेसेस इन न्यूज और कौन सी हाईलाइटेड जगह वो देखनी है। दूसरा हमने देखना है फिजिकल फीचर्स, और ये फिजिकल फीचर और भी बहुत ज़्यादा आसान है, नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। माउंटेन्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, ग्रासलैंड्स, लेक्स, ये सारे नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा गाइस, राइट। लेट अस सी नाउ सम कंट्रीज इन लाइक डेप्थ। सी दिस पर्टिकुलर कंट्री, नाउ आई हैव ओपनड अप दिस मोरक्को। मोरक्को कैपिटल आपको पता है राबात है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर जिब्राल्टर मोरक्को में नहीं पड़ेगा, जिब्राल्टर इज अ टेरिटरी ऑफ यूके विच इज प्रेजेंट इन स्पेन, और स्पेन की एक और टेरिटरी आप कैनरी आइलैंड यहाँ पे देखते हो विच इज नियर मोरक्को ओनली, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। तो राबात तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक और सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस मानी जाती है, दैट इज कासाब्लांका, और ये मूवी भी है कासाब्लांका एक। सो आपको कासाब्लांका ध्यान रखना है दैट दिस इज रिलेटेड टू मोरक्को एंड इट इज़ अ पोर्ट सिटी ऑल्सो गाइज। वन इज मराकेश, एंड मराकेश में क्या होता है, मराकेश में एक हमारी UNFCCC के अंडर हमारी मीटिंग्स होती है इन द फॉर्म ऑफ COP 21 तो आपको याद होगा बिकॉज इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, और ये सब हम बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। तो COP 22 कहाँ पर होता है, वो मराकेश में होता है। मराकेश एग्रीमेंट से भी और मराकेश COP से भी इसको याद रखा जाता है गाइस। सो आपको पता होना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ COPs हुई हैं कहाँ पर, और मैक्सिमम नंबर नहीं कहाँ पर COP हो रही है, तो राइट। सो COP 2020 वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर मराकेश रीजन गाइस, और ये मराकेश इज इन साइड दिस मोरक्को कंट्री,
It is not a coastal city, right? Understanding? So these two countries which I'm not overloading, but Marrakesh and Casablanca, Rabat you have to remember, guys. कम टू दिस अल्जीरिया. अभी हम माउंटेन्स वगैरह में फोकस नहीं कर रहे, तो माउंटेन्स को भूल जाओ, या एटलस अभी तक भूल जाओ, होगार भूल जाओ, ये हम पढ़ेंगे. लेकिन अल्जीरिया में एक अल्जीरियस कैपिटल तो आपने ध्यान में रखना था, वो आप ध्यान में रखोगे गाइस. नेक्स्ट यू सी तुनिशिया. तुनिशिया में यू हैव सीन दिस तुनिश सिटी. ये कहाँ पर है? कोस्टल सिटी है. अगेन आप देख रहे हो ये कोस्टल सिटी है. अल्जीरियस मेडिटेरियन से टच है. जस्ट वेट गाइस. अल्जीरियस कोस्टल सिटी. दिस पर्टिकुलर तुनिस इज मेडिटेरियन सी. लेकिन कौन सी कैपिटल है? राबात इज नॉट टचिंग मेडिटेरियन सी, इट इज टचिंग दिस अटलांटिक ओशन. ये आपको ध्यान में रखना है. सी दिस लिबिया गाइज. लिबिया अल्जीरिया के बगल में, यहाँ पर तुनिशिया से भी टच कर रहा है. और हेयर त्रिपोली तो हमने इसका अगेन अ कोस्टल कैपिटल. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओवर हेयर यू विल फाइंड अल जिजिया. अल जवैया लिखा है, लेकिन इसे अल जिजिया भी लिखा गया है. ये आप वहाँ पर देखोगे, अपनी एक और बुक है ना, in NCRTs and all, you will find this Al Jizya is the hottest place. यहाँ से एक hottest temperature record हुआ है. ठीक है, कितना हुआ आप पता करो एक बार. लेकिन ये अल जिजिया सबसे hottest place बताया जाता है पूरे अर्थ में. ठीक है, you try to find out this. One more port of this particular Libya you try to understand, Benghazi port. Benghazi. So कासाब्लांका कहाँ पर था ये याद है? मराकेश कहाँ पर था ये याद है? If I ask you about Fortaleza, ये याद है Fortaleza कहाँ पे था? Now Fortaleza was present in Brazil. Brazil is present in South America continent. Try to understand, right? ये छोटी मोटी cities हैं जो न्यूज़ में बनी रहती हैं guys, right? So over here you will find Benghazi in Libya only. और ये desert वगैरह हम देखेंगे. Don't worry about it. Time to understand this Egypt. And Egypt पे you will find one very important port, that is Alexandria. तो अभी हम ports पे focus कर रहे हैं, cities पे focus कर रहे हैं, not rivers. ये जो river देखोगे इस पे focus नहीं कर रहे, deserts देखोगे इस पे भी focus नहीं कर रहे. ठीक है, वो हम देखेंगे next class में. But Alexandria and one port is Port Said. You can see over here. Just focus upon this. Alexandria port and Port Said is present over here. And यहाँ पर आप देखोगे man made एक canal, हमारी सबसे important canal Suez canal बनाई गई है. ठीक है, ओवर हेयर यू विल फाइंड दिस पेनिनसुला. मैंने बार बार बोला ये पेनिनसुला किसके अंडर है? पेनिनसुला. लेट मी जूम इट गाइस. ओवर हेयर कैन यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया? मैंने जूम करा है ये पेनिनसुला वाले एरिया को. सो इसे हम, ये इजिप्ट के अंदर है, इसे क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला. तो सिनाई पेनिनसुला. बाजा पेनिनसुला याद है कि कहाँ पर था? बाजा पेनिनसुला. युकांटन पेनिनसुला याद है कहाँ पर था? भूलते मत जाना फ्रेंड्स, यू हैव टू सी इट. कनेक्शन में देखो सारी की सारी वीडियोस. सो ओवर हेयर यू हैव टू रिमेंबर. मैंने किस लिए यहाँ पर ऐड करा है? तो यहाँ पर आपको दो गल्फ मिलेंगे दोनों साइड में. पेनिनसुला तो पता चल गया, तीनों साइड से आपको लैंड मास, तीनों साइड से रिवर से घिरा हुआ दिखेगा. ओवर हेयर यू विल फाइंड गल्फ ऑफ सुएज, बिकॉज यहाँ पर आप सुएज कनाल देखोगे. और जब मैं लेक्स पढ़ाऊंगा तो आपको 4 लेक यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी लेक को कनेक्ट करके इन्होंने सुएज कनाल को बनाया. एंड दिस इज अ मैन मेड कनाल. ये हम देखेंगे. डोंट वरी अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास ओनली, जब लेक्स को पढ़ेंगे. तो ये गल्फ ऑफ सुएज है. और ये गल्फ ऑफ अकाबा है इसके ईस्टर्न साइड में. गल्फ ऑफ अकाबा. सी दिस. कैन यू सी गल्फ ऑफ अकाबा? एंड दिस इज गल्फ ऑफ सुएज. एंड ये दोनों कनेक्ट करके फिर रेड सी बन रहा है यहाँ पर. तो इतनी माइन्यूट चीज़ें भी यू हैव टू अंडरस्टैंड. और अकाबा इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर. अकाबा इज इन जॉर्डन, इज नॉट प्रेजेंट इन इजिप्ट और इसराइल. ठीक है, ये आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट. इजिप्ट का फिर एशिया से कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है? इसराइल के साथ हो रहा है गाइस, क्योंकि इसराइल इज प्रेजेंट इन वेस्ट एशिया. तो कंट्रीज भी सेपरेशन के लिए पूछी जा सकती है कि एशिया को कौन सा कंट्री सेपरेट करता है अफ्रीका से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से? तो इसराइल एंड इजिप्ट आर कनेक्टिंग विद ईच अदर गाइस ओवर हियर. यूरोप के साथ कोई कनेक्शन है क्या? नहीं. अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. एक होता है सिर्फ मैं मार्क करके आगे बढ़ जाऊँ, क्या रो इजिप्ट, ये आपका पोर्ट सैयद. पोर्ट सैयद आप देख रहे हो कहाँ पर है? यहाँ पर आपका अलेक्जेंड्रिया. ऐसे आपको मार्क करवा के मैं आगे बढ़ जाता गाइस. यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा. बट आई एम फोर्सिंग यू टू सी हाउ क्वेश्चंस कैन बी जनरेटेड इन यूपीएससी. नाउ यू कम ओवर हेयर एट एरिट्रिया. एरिट्रिया में क्या देख रहे हो आप? ये दहलक आर्किपेलाजो रेड सी में प्रेजेंट है. दहलक आर्किपेलाजो. दहलक आर्किपेलाजो इंडियन ओशन में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज इंडियन ओशन में तो आपने चागोज वगैरह देखा है, डियोगो गार्सिया देखा है. इंडियन ओशन में ही आपने फिर शेशलीज देखा है, शेशलीज के बाद कोमोरोस देखा है, कोमोरोस के बाद मेडागास्कर देखा है, मेडागास्कर के बाद मॉरिशियस, और मॉरिशियस के बाद रियूनियन देखा है. बट दहलक इज इन रेड सी. दहलक आर्किपेलाजो. ऑल्सो अस्मारा तो कैपिटल है, बट इट इज़ नॉट अ पोर्ट सिटी. ठीक है, इतना याद रखना. इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है गाइस.
सी सूडान हमने देखा था, सूडान इजिप्ट के नीचे था, एरिट्रिया के पास में ही है, एरिट्रिया कंट्री है। ओवर हेयर आप कैपिटल देखो खार्तूम, ये इंपॉर्टेंट है सूडान का, ठीक है। ओवर हेयर यू विल सी सम दैट, ओवर हेयर यू विल सी दिस पर्टिकुलर पोर्ट सूडान ऑल्सो, बट ये तो बहुत ईजी है। बाकी जो रिवर कैसे पास हो रही है कैसे नहीं पास हो रही है, नेक्स्ट क्लास में वी विल जूम व्हेन रिवर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सी दिस पर्टिकुलर कंट्री गाइस, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, और बीच में लैंडलॉक कंट्री मैंने एक आपको बताया था इथोपिया। अब हम इथोपिया को थोड़ा देख रहे हैं, इथोपिया को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से। यहाँ पर ये जो रीजन है ना इथोपिया का, ये वाला रीजन, जैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, यहाँ पर एक रीजन जो देखते हो आप, ये बेसिकली टिग्रे रीजन है, इसको नाम देते हैं टिग्रे। तो कभी भी अगर ये आ जाए कि विच ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ 4 रीजन देख रहे हैं, रीजन मेंशनड इन न्यूज, ऑफन मेंशनड इन न्यूज, और टिग्रे आ रखा है आपके पास, और टिग्रे आगे मार्क करवा रखा है आपको उससे, इथोपिया या फिर कोई और कंट्री से दे रखा है, तो यू कैन फाइंड आउट टिग्रे इज प्रेजेंट इन इथोपिया। तो इसके साथ एरिट्रिया का लैंड बाउंड्री आप देखोगे, राइट। सो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट व्हाई दिस इथोपिया प्रेजेंट इन न्यूज, बिकॉज यहाँ पर आपको ये सिविल वॉर कंडीशंस मिलेंगे गाइस। इथोपिया विल बी ऑलवेज और इज इन न्यूज फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर। सिविल वॉर मीन्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं लोग, आपस में कैसे, जैसे टिग्रे रीजन है, इसको स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और एक सेंटर गवर्नमेंट कहाँ पर रूल करेगी, एडिस अबाबा में, ठीक है। यहाँ पर इनके और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसको और कॉन्फ्लिक्ट को आप आईआर में पढ़ते हो कि वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इंडिया, इट इज इम्पैक्टिंग इंडिया और नॉट। इफ नॉट नहीं कर रहा तो आपको इतना इन डिटेल नहीं पढ़ना होता इसको, अंडरस्टैंडिंग। बट वाई आई एम टेलिंग यू दिस टिग्रे रीजन इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दिस इथोपिया, एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स आप यहाँ पर देखोगे। तो टिग्रे को आपको ध्यान में रखना है। आपको कभी भी देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी भी टिग्रे से आगे कुछ नहीं पूछते, अगर आपने देखा हो, लेट मी शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो। आप देखोगे वहाँ पर सिर्फ वो रीजन मेंशन कर रहे हैं, रीजन कहाँ पर मेंशन है, कहाँ पर कौन सी कंट्री में आता है, ना वो आपसे स्टोरी पूछ रहे हैं, ना वो आपसे पूरा इशू पूछ रहे हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम आधा घंटा स्टोरी जानने में लगा देते हैं। वो स्टोरी उसी की जानो जो आईआर में आपको फायदा करे, इंटरनेशनल रिलेशंस में फायदा करे, जियो पॉलिटिक्स में फायदा करे, और वो भी मेंस पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यू नेवर अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स, समझ रहे हो। सो ट्राई टू हैव दिस पर्टिकुलर डायमेंशन ऑल्सो कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तब जाके वो आपके मेंस में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हर एक इशू पे आप इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक टिग्रे रीजन देखते हो। सो फर्स्ट रीजन विच यू हैव सीन इज दिस इज टिग्रे रीजन, दिस इज टिग्रे रीजन, राइट। दूसरा रीजन जो आपने इसमें पढ़ना है, दैट वन इज अम्हारा रीजन गाइज। अम्हारा, अम्हारा प्रोविंस, ये वाला एरिया आपका जहाँ पर इथोपियन हाईलैंड है, अम्हारा। ये एडिस अबाबा अम्हारा के अंदर नहीं आएगा, ये वाला रीजन आपको यहाँ पर मिलेगा, अम्हारा। एडिस अबाबा ये जो कैपिटल है, ये आता है हमारे कौन से, ओरोमिया कैपिटल के अंदर, ओरोमिया। अम्हारा, ओरोमिया। वाई, बिकॉज ओरोमिया एक ट्राइब यहाँ पर रहती है, ठीक है। अम्हारा भी एक ट्राइब है जो इस रीजन में रहेगी, और ये टिग्रे रीजन है। ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गाइस। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या नहीं चल रहा, कितनी डेप्थ में जाना है। आई वुड से जस्ट 15 मिनट्स की रीडिंग करो इस पूरे इशू में, ज़्यादा नहीं, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के परस्पेक्टिव से। बट दीज प्लेसेज आर इन न्यूज़। How they have asked you question, I am telling you now. See this particular question guys. Amhara is related to Ethiopia. Now suppose आपने ये पूरा इशू समझ लिया और आपने 1 घंटा दिया इस पूरे इशू को समझने के लिए। एग्जाम में आ क्या रहा है आपका, अम्हारा सिर्फ। अगर आपको यहाँ से सिर्फ अम्हारा याद है क्या, और वो भी एग्जाम के टाइम वाले दिन याद रहेगा, अम्हारा, टिग्रे, ओरोमिया आर रिलेटेड टू इथोपिया, ये याद रहेगा सिर्फ इतना। और आपने तो लेकिन पूरी कहानी पढ़ ली, और उस कहानी में भी आपको बहुत कुछ याद रखना होगा। तो इसलिए लिमिटेड पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट। सो यहाँ पर आपको बहुत ही लिमिटेड देखना, व्हाट इज द इशू गोइंग ऑन, सिविल वॉर। अगर कोई इंडिया में इंपैक्ट है तो उसको जीएस पेपर 2 मेंस के लिए तैयार करें, नॉट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, हमारा। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टाइम दे कैन गिव यू, टिग्रे रीजन आ चुका है एक बार, एक ओरोमिया अभी तक नहीं आया, ओरोमिया दे विल गिव यू नेक्स्ट गाइस, आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज इथोपिया पर्टिकुलर पार्ट। ओवर हेयर हाईलैंड्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज प्लेट्यूज वगैरह, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका नाम अबिसिनियन प्लेट्यू भी होता है इथोपिया में, विल बी अंडरस्टैंडिंग। बट इथोपिया इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका और नॉट, इथोपिया इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंक्लूडिंग एट्रिया, जिबूती एंड दिस सोमालिया। सो सी दिस मैप नाउ। मोरक्को में हमने माराकेश देखा, कासाब्लांका देखा। अल्जीरिया में वी हैव सीन दिस कैपिटल ओनली। तुनिशिया में तुनिस कैपिटल। लीबिया में वी हैव सीन त्रिपोली एंड वन मोर बेंगाजी पोर्ट एंड वन मोर अल जिजिया इन लिबिया ओनली।
In Egypt, we have seen Alexandria port. Over here, can you see Alexandria and Port Sayyid? Over here, Gulf of Suez, Gulf of Kababa, Sinai Peninsula. सूडान में आप गए तो सूडान में आपने सिर्फ ये अल खार्तूम इनकी कैपिटल देखी, बाकी चीज़ें हम देखेंगे. यहाँ पर एरिट्रिया में वेरी इंपॉर्टेंट वन आर्किपेलाजो यू हैव सीन. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट आर्किपेलाजो गाइस? यहाँ पर हमने इथोपिया में टिग्रे रीजन, दिस पर्टिकुलर अस्मारा रीजन, सॉरी नॉट अस्मारा बट हमारा रीजन, एंड यहाँ पर हमने देखा कौन सा रीजन, ओरोमिया. ए कॉन्फ्लिक्ट्स, इथोपिया इज अंडर कॉन्फ्लिक्ट. जिबूती, सोमालिया में आपको ये ध्यान में रखना है दैट वन कैपिटल मोगादिशु भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है गाइस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पॉपुलेटेड रीजन ऑफ सोमालिया. ठीक है, वन मोर थिंग, आपने एक लीबिया में एक और जो न्यूज़ में रहता है, लीबिया में एक तो बेंगाजी पोर्ट पड़ा, त्रिपोली पड़ा, लेकिन आपने तोब्रुक रीजन, ये तोब्रुक रीजन जो तोब्रुक सिटी है वो भी लीबिया में है गाइस. तो तोब्रुक को भी आप ऐड करो अपनी लीबिया के उसमें. तो लीबिया में नाउ यू आर कनेक्टिंग विद बेंगाजी, तोब्रुक एंड त्रिपोली. ठीक है. अल्जीरिया में इतना कुछ खास नहीं. मोरक्को में कैसाब्लांका एंड माराकेश. सोमालिया में मोगादिशु इज अ कैपिटल पोर्ट सिटी. केनिया में यू विल फाइंड मोम्बासा. केनिया में आपको एक पोर्ट सिटी ध्यान में रखनी है, मोम्बासा गाइज. ओवर हेयर मोम्बासा. नीचे जांजिबार हमने देख लिया है. तंजानिया में दर अस्सलाम इज अ पोर्ट सिटी गाइज. दर अस्सलाम. जांजिबार और पेम्बा हमने देख लिया था, नो नीड टू रिमेंबर. मोजाम्बिक में यू विल नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर, मापूतो के अलावा हमने देखा था. ठीक है. साउथ अफ्रीका में यू मार्क दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ केप टाउन, हमने देखा था केप टाउन को. डरबन कहाँ पर पड़ता है, डरबन, दिस इज ओवर हेयर पोर्ट सिटी गाइस. पोर्ट एलिजाबेथ कहाँ पर पड़ता है, वो भी आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है. पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन, केप टाउन, दिस ब्लूमफिंटीन एंड प्रिटोरिया आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पर आप छोड़ दो, अंगोला छोड़ दो. ये बेंगुएला कहाँ पर पड़ता है, जब हम करंट्स देख रहे होंगे ना तो एक करंट आएगा बेंगुएला करंट. तो बेसिकली बेंगुएला इज प्रेजेंट वेयर, दिस इज अंगोला में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ठीक है, ये बेंगुएला आपको ध्यान में रखना है गाइस. ओवर हेयर अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेल यू अबाउट दिस लागोस पोर्ट इन नाइजीरिया, लागोस. ठीक है, और यहीं पे बगल में एक हारकोट पोर्ट मिलेगा आपको. लेट मी मार्क इट. ये लागोस पोर्ट नाइजीरिया में एंड हारकोट पोर्ट एक मिलेगा गाइस आपको. ये भी ध्यान में रखना, ये भी न्यूज़ में बना रहता है. लागोस, हारकोट, HARCOURT. इसको सर्च करो गूगल पे, इसकी लोकेशन एक बार देखो आप कहाँ पर. बेंगुएला आपने देखना है, यहाँ पर केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, डरबन. ऊपर जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा जांजिबार, मोम्बासा केनिया में, मोगादिशु. यहाँ पर आपको 3 रीजन मिलेंगे, टिग्रे एंड देन 3 हमारा एंड दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ ओरोमिया. सूडान में यू विल गेट दिस खार्तूम, पोर्ट सैयद, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, तुब्रुक, बेंगाजी, त्रिपोली. तुब्रुक वाई इट वॉज प्रेजेंट इन 2022 बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे अगेन सिविल वॉर कंडीशंस. यहाँ तुब्रुक के रीजन कॉन्फ्लिक्ट करते हैं विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं तुब्रुक में, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़ गाइस. Over here you see this particular Burkina Faso guys. Burkina Faso is present also in news because of civil war conditions. I have already told you. Burkina Faso. Now अब जब मैं डायरेक्टली आपको ऐसे बता रहा हूँ ना तो आई नो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी बिकॉज यू नो बुर्किना फासो इज ऑलरेडी पासिंग थ्रू प्राइम मेरिडियन. आपको पता है ये कोड द एवरेज GDP को भी सराउंड कर रहा है. यू नो इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री. तो अब ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड आपको पता है इनके बारे में. ठीक है, बुर्किना फासो. ओवर हेयर यू विल फाइंड लागोस, हारकोट आपने देख लिया है. पोर्टो नोवो कहाँ पर पड़ता है, बेनाइन में पड़ता है पोर्टो नोवो गाइस. ठीक है. ओवर हेयर कैमरून में आप देखो, कैमरून में भी न्यूज़ में बना रहता है. यहाँ पर क्यों बना रहता है मैं आपको बताता हूँ एक रीजन के बारे में. यहाँ पर इन पीपल्स को बोलते हैं एंग्लोफोन रीजन, एंग्लोफोन रीजन्स गाइस, और ये न्यूज़ में बना रहता है. अगेन दिस इज नोन एज, यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एग्जाम में आएगा एंग्लोफोन क्राइसिस और एंग्लोफोन लिखा आएगा, आगे कोई भी कंट्री लिख दी गई होगी. कैमरून में सिचुएटेड है ये रीजन गाइस. एंग्लोफोन में एक ट्राइब प्रेजेंट है बेसिकली, एम्बाजोनियन पीपल आर प्रेजेंट ओवर हेयर. एम्बाजोनियन, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट रहता है. क्यों रहता है, किस बात के लिए रहता है, नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो, बट इफ यू वांट टू नो बट एटलीस्ट 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट स्पेंड करना, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो एंग्लोफोन रीजन आपको यहाँ पर कैमरून से रिलेटेड याद होना चाहिए. दिस पर्टिकुलर टिग्रे, दिस पर्टिकुलर ओवर हेयर ओरोमिया इज प्रेजेंट विद इथोपिया. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू नो अबाउट द थिंग्स गाइस, राइट. सो हमने बहुत सारे रीजन्स देखने की कोशिश करी अभी यहाँ पर. लेट अस जस्ट रिवाइज वंस फॉर ऑल दैट व्हाट ऑल वी हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद फिजिकल फीचर, जो कि बहुत ईजी होने वाला है बिकॉज नाउ यू नो द पॉलिटिकल बेस. आपका पॉलिटिकल बेस स्ट्रॉन्ग है. अब इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, समझ रहे हो. इससे ज़्यादा आपको ऐड करना है एज पर योर कैपेबिलिटी, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो. बट
अगेन थिंक अबाउट द एग्जाम परस्पेक्टिव कि आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना, यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दूं तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स नॉट राइट अप्रोच. Let us revise in today's class what all we have seen. First of all, we have started with the like understanding of islands also of Africa continent. So can you write down the islands? Can you remember the islands? Pause the video and try to remember. I am marking it. This island over here near this Mauritiana and this Senegal over here, some islands were present. 1, 2, and over here you have seen third island of Atlantic Ocean. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में रखो. इसको मैं बोल रहा हूँ कैनरी बिकॉज इट इज प्रेजेंट विद यहाँ पर स्पेन की टेरिटरी, और यहीं पर कैनरी करंट भी आएगा. जब करंट्स में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा. ये 2 को हम क्या बोलते हैं? केप वर्डे. इस थर्ड को साउ टोमे एंड प्रिंसिपी. ये किस लिए भी फेमस है? बिकॉज यहाँ से इक्वेटर पास करता है. देन हमने यहाँ के आइलैंड्स पढ़ने की कोशिश करी यार. हमने सबसे पहले पढ़ा था शेशलीज, और शेशलीज वर्सेस लागोस आर्किपेलागो जो थोड़ा सेंटर में प्रेजेंट है इंडियन ओशन के, वहाँ पर देखा हमने. फिर हमने ये कोमोरोस देखा, फिर हमने मेडागास्कर देखा, और मॉरिशियस और रियूनियन को साथ में देखा. रियूनियन किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की. चागोस ब्रिटिश यूनियन की, और ब्रिटिश की बोल सकते हो आप यूके की टेरिटरी. यहाँ पर हमने क्या देखा? ज़ैंज़िबार, पेम्बा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस. ये हमने पहला आइलैंड्स का कंसेप्ट देखा. देन वी हैव ट्राइड टू सी that okay what all we have tried to open these particular countries also. ये हमारा मॉरिशियाना, ये हमारा कौन सा है? दिस मोरक्को. मोरक्को में हमने अपार्ट फ्रॉम राबात जो कि कैपिटल सिटी है, हमने देखा कासाब्लांका. एंड ओवर हेयर व्हाट वी हैव सीन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू रिमेंबर गाइज, मराकेश. इन द अल्जीरिया नथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हेयर. अल्जीरिया स्पोर्ट सिटी मिलेगी आपको. तुनिशिया में तुनिस स्पोर्ट सिटी मिलेगी. लीबिया में हमने 2-3 चीज़ें ज़रूर देखी थी. लीबिया में वन इज त्रिपोली पोर्ट सिटी. बेंगाजी एक पोर्ट देखा था, लेकिन एक जो न्यूज में बना रहता है और वो है हमारा तोब्रुक रीजन, और कहीं कहीं पे तुबरुक भी लिखा जाता है, तुबरुक रीजन. तो तुबरुक आगे कोई एक कंट्री लिखी गई कि ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में छपने वाला है गाइस, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. यहाँ पर आपको इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सैयद, ये सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ सुएज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, ये रेड सी आ जाता है. यहाँ पर सूडान आएगा आपको पास. यहाँ पर फिर एरिट्रिया. एरिट्री में मैंने एक दहलक आर्किपेलागो बताया था, वो एरिट्रिया में है. ठीक है. ओवर हेयर देन यू विल सी इथोपिया. इथियोपिया में टिगरी रीजन, हमारा रीजन, एंड ओरोमिया रीजन आपको याद होना चाहिए. यहाँ पर मुम्बासा. मुम्बासा पोर्ट कहाँ पे था? मुम्बासा. मुम्बासा पोर्ट वॉज प्रेजेंट इन कीनिया. मोगादिशु पोर्ट वॉज प्रेजेंट इन सोमालिया. ज़ांज़ीबार और ये पेम्बा तो आपने यहाँ पे देख लिया था. दारुस्सलाम पोर्ट भी आपने यहाँ पर देखना था, तंजानिया में. साउथ अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ. डरबन. डरबन इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया. ओवर हेयर प्रेटोरिया, ब्लमफेंटीन. ओवर हेयर वन इज केप टाउन. राइट गाइज. एंग्लोफोन क्राइसिस कहां पर था? कैमरून में एंग्लोफोन क्राइसिस इज गोइंग ऑन. लागोस पोर्ट ये नाइजीरिया में. हरकोट पोर्ट नाइजीरिया में. बुर्किना फासो प्रेजेंट इन न्यूज ओवर हेयर. ये हमने आज की क्लास में देखा. ये सारी प्लेसेस पता होनी चाहिए गाइस आपको. जिस हिसाब से हमने डिफरेंट प्लेसेस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी करी थी. इन द लास्ट एक आई विल बी डूइंग लाइक मैराथन सीरीज जिसमें मैं सारी चीज़ें रिवाइज करूंगा, लेकिन आपको ये समझनी पड़ेंगी तभी जाके वो मैराथन आप इंजॉय कर पाओगे. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट इट. अगर इफ़ यू वांट दैट होल सीरीज को मैं एक फॉर्मेट में मतलब 1 घंटे में रिवाइज करेंगे, यू डू कमेंट. इफ़ यू आर लाइकिंग इट ऑल्सो कमेंट गाइज, लाइक इट ऑल्सो. राइट. ओवर हेयर यू विल फाइंड वन मोर थिंग about the how cancer is passing. You have seen how cancer is passing over here. You have seen how equator is passing from this particular area like this. You have seen how cancer is passing through these areas guys, like this. And if I tell you ये रीजन आता है क्या कैंसर में? नहीं. तुनिशिया भी नहीं आता. ये माली रीजन भी नहीं आएगा, ये वाला रीजन भी नहीं आएगा. इफ़ आई टेल यू ये इक्वेटोरियल गिनी आता है क्या? नहीं आता. ये बुरुंडी और रवांडा आएगा? नहीं आता. इफ़ आई टेल यू दिस जिम्बाब्वे आएगा क्या? नहीं आएगा. लेसोतो स्वाजीलैंड आएगा? नहीं आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बाकी मेरे को पता है आप एक बार लिख लोगे, इसको लिख के देखो कौन सी कंट्रीज आती हैं. देन यू आर कंप्लीटली वेल लाइक sound in this particular political feature of Africa guys. And Africa, just appreciate yourself to appreciate myself to that you have done this particular continent politically.
फिजिकल फीचर आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। रिवर नाइल, कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से लेक्स हैं, कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, वो आपको वंस फॉर ऑल समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, रिवाइज इट ऑल गाइज। थैंक यू सो मच। आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी मीटिंग you in the next lecture, and do comment also if you are liking this so that I can also feel that you are connected with me. Thank you so much guys.